देखो राजा ये टॉपिक अपन डिस्कस थोड़ा या कितना ऑलरेडी के लिए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल बट if there is permanent withdrawal of capital that is called drawings from capital and additional capital then fresh capital introduced no? Then these will also be considered for calculating the interest on capital. Example देखो ENB started a partnership on 1st April 2020 with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh. Their capitals at the end of the year, AD capital दिखती है, end of the year were 4 lakh and 2 lakh 50,000. Calculate interest on capital at 10% per annum. मैंने दोस्तों कैपिटल्स कितने तरह की देती तो ओपनिंग भी देती क्लोजिंग भी देती कैलकुलेट की करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने लगाओगे ओपनिंग तो पहले बेसिक एग्जांपल हो गया कि दोनों भी अवेलेबल है यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल वाज 3 लाख एंड 2 लाख उत्ते 10% लगा के तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया मैं क्लियर बच्चा नेक्स्ट देखो अस्यूम बी पॉइंट के लिखे कि इफ PWC that is drawings from capital या fresh capital is there फिर उन्होंने भी कंसीडर करना तो ANB started a firm on 1st April 2019 ANB introduced rupees 5 lakh and 4 lakh respectively A introduced additional capital of rupees 2 lakh on 1st October 9 कितना इंट्रोड्यूस किया So 5 lakh and 4 lakh they introduced in the starting. A introduced additional capital of rupees 2 lakh on 1st October 19 and withdrew rupees 1 lakh on 1st January 2020. Calculate interest on capital at 10% per annum for A and B. ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੈਪੀਟਲਸ ਚ ਚੇਂजेस ਵੀ ਹੈ B ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ नो B ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਔਨ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ B ਦੀ B ਦੀ B ਦੀ B ਦੀ B ਦੀ B ਦੀ ਕਿੰਨੀ 4 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਤੇ 10% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 40,000 everyone yes or no after that second we have to calculate for A ਦੀ कैपिटल चेंज हो रही बार बार स्टार्टिंग कितनी कैपिटल थी 5 लाख देन किस दिन चेंज होया 1st अक्टूबर ਨੂੰ चेंज होया माशू हाउ मच बचा 1st अक्टूबर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈ ਕਿ ਵਿਡਰਾਲ ਹੋਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ 2 लाख एंड 1st जनवरी ਨੂੰ विड्रॉल ऑफ 1 लाख ठीक है तो व्हाट विल वी डू उसकी बनानी टाइमलाइन we'll always say this like timeline okay ठीक है ना इनू टाइमलाइन कितना बनानी है ध्यान से सुनो when the firm started A introduced how much 5 lakh rupees 1st April ਨੂੰ he introduced opening capital 5 lakh yes or no 1st October ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੜੋ additional capital ਆਈ 2 lakh 1st October ਨੂੰ additional capital आई 2 lakh कैपिटल हो कितनी गई 5 + 2 7 lakh ऊपर चेंजेस लेके जाओ नीचे नेट करी जाओ उस तो बाद नेक्स्ट की होया 1st जनवरी ਨੂੰ 1 लाख ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ विड्रॉल ਐਡ या ਲੈਸ इस दिन की होया -1 लाख बचा कितना फिर 6 लाख बस इतना ही है
तो बात तो कोई चेंज नहीं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस टाइमलाइन ਤੇ ਸੋਚੋ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 6 मंथ्स। अगला अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स एंड अगेन यस और नो। मींस 5 लाख कैपिटल कितनी देर रही ਤੁਹਾਡੀ 6 मंथ्स। 7 लाख कितनी देर रही 3 मंथ्स एंड 6 लाख कितनी देर रही 3 मंथ्स। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਦਿਓ 10% ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। 5 lakh into 10% for 6 months, 7 lakh into 10% for 3 months, and 6 lakh into 10% for 3 months. So your interest on capital, the answer आ जाओगे yes or no? This will be 25,000 plus 17,500 plus 15. Yes or no? ठीक है, and the total will be 57,500. Okay. This was your method 1 timeline. Then what's the second method? Second method ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ product method try ਕਰ ਸਕਦੇ। product method वैसे किदा सीखे आप IOD ਦਾ interest on drawings। we can use product method here also। देखो की करना, ਉੱਥੇ column याद है, पहला date, second months up to the closing date, amount and product। yes or no? 1 अप्रैल ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਲੱਖ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਲੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਲਿਖ ਦੋ। 1 जनवरी ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ विड्रॉल ਤਾਂ 1 ਲੱਖ नेगेटिव लिख दो। जो चेंजेस है वो लिखते, पहला 5 लाख आए फिर 2 लाख आए फिर 1 लाख गया। यस और नो। मंथ्स 1 अप्रैल टू क्लोजिंग डेट की है 31 मार्च 12 मंथ्स, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स, जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गए, नेगेटिव वाला अमाउंट सी ਉਹਦਾ नेगेटिव वाला प्रोडक्ट आऊगा एंड द टोटल इज 69 lakhs। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਣਾ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and product method always use 1 by 12। so you will say 69 lakh into 10% into 1 by 12। आंसर सेम आया yes or no? yes or no? कोई डाउट? anyone any doubt बच्चा? so this was the reason। okay। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਆ ਟਾਈਮਲਾਈਨ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਲਿਸਨ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅਰਜੁਨ। ਅਸੀਂ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ਦੇ क्वेश्चन ਲਈ प्रोडक्ट मेथड क्यों सीखिया, because this method can help you to find 3 topics, calculate the values of 3 topics। ਤੁਹਾਡੇ ਇसी ਚੈप्टर ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ एवरेज कैपिटल। व्हाट इज द एवरेज कैपिटल ऑफ ए, कि उन्होंने एवरेज ਉਹਦੀ कैपिटल कितनी रही पूरे साल। तो व्हाट आंसर विल यू गिव 69। ठीक है, ए ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 69। ਇਹਦੇ ਬੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫॉर ਬੀ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਸੋਚੋ ਡੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨੇ 4 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਸ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੂਗੇ ਪੂਰੇ 12। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 40 ਲੱਖ 48 ਲੱਖ। चेंज तो कुछ होया ही नहीं, मींस यदि एवरेज कैपिटल इज 48 लाख ओनली। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। मींस अगर कोई पूछ लें तो व्हाट्स द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर, फॉर ए यू विल से 69 लाख, फॉर बी यू विल से 48। ये हो गया एक टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक क्लियर एवरेज कैपिटल।
सेकेंड है ना, एक क्वेश्चन आ जाता कई बार एक टॉपिक ऑल्दो विच विच मोस्टली सिलेबस से नहीं कवरेज आती होती, बट दे कैन आस्क यू व्हाट इज द कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी। कहीं एक चीज देखो, आई टोल्ड यू कि अगर किसी बच्चे ने सीए फाउंडेशन की तैयारी सीयूईटी की तैयारी करनी है, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਸੀਯੂਈਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਥਡਸ ਇਸੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ, ਤੀਜੇ ਲਈ ਅਲੱਗ। तो पहला देखो प्रोडक्ट मेथड का टेबल बना के यू गॉट एवरेज कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सेकंड इज कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी। फॉर कैपिटल रेशियो आल्सो यू हैव टू फाइंड द सेम टेबल। ए दी कितनी कैपिटल आई? 69 लाख, और बी दी 48 लाख। नाउ दिस बिकम्स द कैपिटल रेशियो, दिस बिकम्स द कैपिटल रेशियो। ओके, एंड थर्ड टॉपिक इज टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि 69 लाख ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ परसेंटेज लगा के 1 बाय सेम टेबल 10 टॉपिक्स से लिंक हो सकते, इसलिए आईओसी प्रोडक्ट मेथड भी मैं सिखा। यू गेटिंग दैट? एवरेज कैपिटल्स, कैपिटल रेशियो, देन आईओसी। और बाय चांस क्वेश्चन ने तीनों चीज़ां पूछियां कदी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈਓਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟ ਕੀ ਪਾर्ट पाया जा सकता, दे वुड से मान लो 32 lakhs का प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन द कैपिटल रेशियो। तो अगर कैपिटल रेशियो सही कटी होगी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो भी ਉਹਦਾ पार्ट बना देना। जिस बच्चे ने सेकंड पार्ट कैपिटल रेशियो सही कैलकुलेट की थी, ਉਹਦਾ फोर्थ पार्ट सही हो। एम आई क्लियर? यस और नो? तो 4 टॉपिक्स मतलब 3 टॉपिक्स एक्चुअली। बोलो पहला केड़ा? एवरेज कैपिटल कटन ਲਈ, सेकंड वन कैपिटल रेशियो ਲਈ, थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, यस और नो? क्लियर? क्लियर? चार क्लियर बचा? हिमांशु? ओके, उन्हें तो पास्ट एडजस्टमेंट पूरे इंग्लिश पढ़ी हुई थी कि लिखी? एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस इन द पास्ट। पुरानी कोई एडजस्टमेंट गलत करती सी, ਉਹਨੂੰ ठीक करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ एडजस्टमेंट कर। पुरानी कोई एप्रोप्रिएशन गलत करती, आईओसी गलत देता, सैलरी गलत देती, कमीशन गलत देता, बोनस गलत देता, आईओडी कैलकुलेट कर लिया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत कर ली, कुछ भी गलती हो सकती, ਉਹਨੂੰ ठीक करने लिए टॉपिक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट्स नाउ। तो रिया, Mona and Nisha are partners sharing profits in the ratio 3:1। Profits last 3 years they कितने given है? 1,40,000, 84,000 and 1,06,000। These profits were by mistake distributed equally। रेशियो किसी 3:1 दे कितना इतने गलती होगी। This error is now to be corrected। एक ही पुराने एरर्स ठीक कराने लिए, मतलब एक्चुअली ये रेक्टिफिकेशन है, एक एंट्री पाओ रेक्टिफाई कर। ठीक है, व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ਦੇ क्वेश्चन हमेशा पहली चीज यू विल राइट द नेम्स। नेम लिख ले, रिया, मोना एंड निशा। पहला कॉलम क्लियर? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ गलती की ਕੀਤੀ? सर प्रॉफिट 3:1 ਚ देने से दे कितना इतने इक्वली, अगर गलत देते तो वापस लो, गलत देते वापस ले लो।
ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰੂਲ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ? ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ? ਡੈਬਿਟ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਕੁਅਲੀ ਜਾਂ 3-1? ਇਕੁਅਲੀ। ਇਕੁਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। तो फर्स्ट थिंग इज नेम्स तो बाद प्रॉफिट्स वापस लेने हैं डेबिट करो व्हाट कम्स इन किस रेशियो इक्वली किन्ने किन्ने प्रॉफिट्स कहते एक आ सी 140 एक 84 और एक 1,06,000 तीनों ही में सेम गलती सी। किन्ना का टोटल लगा लिया 3,30,000 डेबिट करते नीचे टोटल आ वाली चीज। रेशियो की लगानी 111 तीनों च 111 लिख के तीनों अमाउंट्स आ गए। एक ही गलती सी होगी सॉर्ट, गलती सुधर गई। मतलब हले तक कितना काम होया ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਔਰ नो और ਤੁਹਾਡੀ गलती सुधर गई यस और नो। जितना ही गलती सुधर गई उस तो अगला स्टेप ਤੁਹਾਡਾ आया ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ नीचे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ਕੀ ਕਰਨਾ नीचे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? डेबिट ਸੀ 330 ਤੇ क्रेडिट भी कितना कर दो 330। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡੈਬਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3,30,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲਿਖੋ। ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏ? 111 ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਕਿੱਦਾਂ? 3:1 ਸੋ 330 ਨੂੰ 3:2:1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡੈਬਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡੈਬਿਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 330 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ। ਨੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? रिया ਨੂੰ 1,10,000 डेबिट करने और 1,65,000 क्रेडिट करने नेट 55,000 ना कर दिए। केड़ी चीज? वड्डी वाली क्रेडिट। मतलब इतने की किया डिफरेंस लो, बिगर का नाम लिख, डिफरेंस लेके बिगर वाले का नाम। मशू 1,10,000 डेबिट करने 1,65,000 क्रेडिट करने नेट 55 करना की करना एक्स्ट्रा वाला क्रेडिट करना। मोना का की होया 110 डेबिट है 110 क्रेडिट है, कुछ करने की नीड है? कुछ भी नहीं। निशा का 110 डेबिट है 55 क्रेडिट है, डिफरेंस क्या है? 55 ਵੱਡਾ कौन? डेबिट। और ਇੱਥੇ मैच होगा, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, मैच हो गया। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈਂਗ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ और रिया ਨੂੰ क्रेडिट करना। सो योर जर्नल विल बी निशा's capital account debit to Riya's capital account 55,000 and 55,000 प्रॉपर जर्नल ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਪਾਓਗੇ। डेट ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं given, so you will write सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट और नीचे लिखोगे बीइंग द रेक्टिफाइंग एंट्री या बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, नरेशन एक ही फिक्स कर रहे हो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्लियर है? ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं उस तो बाद तुसी सॉल्व करियो ना कि जो डाउट आया मैंने कुछ। राम मोहन एंड सोहन एक और केड़ा है आ वाला देख दिस वन। Profits earned by partnership firm for the year were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without charging interest on drawing। IOD चार्ज करना भूल गए। IOD देईदा कि लईदा? लईदा लिखा भी है चार्ज विदाउट चार्जिंग है ना, चार्ज किते बिना चले गए तुसी। IOD लेना भूल गए तो हुन ले लो, जो करना भूल गए हुन कर लो। की भुले सी? IOD लेना भूल गए हुन ले लो। समथिंग इफ यू टू टेक इट तो की करना? डेबिट व्हाट कम्स इन
ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਈਓਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈਓਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਦੀ 3000 ਅਨੂ ਦੀ 1000 ਓਕੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨੇਮਸ ਲਿਖੋ गलती की ਕੀਤੀ ਆਈਓਡੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਡੈਬਿਟ तो आईओडी ਦੇ ब्रैकेट से आ गया डेबिट कितना कितना अमाउंट से 3000 एंड 1000 टोटल आ गया 4000 डेबिट का इतना क्लियर हो गया पहला कॉलम इतने तक कोई डाउट है तो पूछो कोई डाउट किसी ने पक्का अगर है तो पूछ लो बोलो नो ਫੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇ ਕੀ ਕਰਦੇ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नीचे साइड को सिर्फ 4000 डेबिट था तो की लिख दोगे 4000 क्रेडिट ऊपर नाम की लिखी था फिर प्रॉफिट जिधर कोई नहीं होते प्रॉफिट जितने कोई नाम नहीं पता होते प्रॉफिट्स रेशियो किसी इक्वली तो 1:1 करता 2000 एट 2000 हिमांशु क्लियर इस कॉलम पे डाउट क्लियर उसके बाद की सेकंड रूल में की गया फर्स्ट स्टेप पास ही गलती सुधारो सेकंड की क्या मैं डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट कर एज ए स्टेप याद कर लो जिन्ना डेबिट किया कुछ क्रेडिट भी तो करोगे सेम तो उत्थे नाम कि लिख देना प्रॉफिट्स रेशियो किसी इक्वल तो 1:1 4000 का 1:1 2000 2000 हो गया सब हूँ नेट इफेक्ट नेट की आया 3000 और 2000 का गैप 1000 नाम बर्थडे वाले का डेबिट आ गया ये दूजे च डिफरेंस 1000 नाम बड़ा को आना क्रेडिट का एक डेबिट आ गया 1000 एक क्रेडिट आ गया 1000 मतलब एंट्री होगी मैच यस और नो एंट्री क्या होगी पंकज टू अनु मींस पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास ये दो क्वेश्चन पहले सॉल्व रिया मोना निशा और पंकज है इतने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मैंने एक एक वर्ड फॉर्मेट देखना चाहिए